Okay, so last time we have seen to find area of any surface, what do? We have divided whole of this region. So this region is called A. We will divide whole region into the rectangular grid. So what you will do? Sorry, my drawing is not perfect. Let me take shapes only. So I can make this kind of grid to get this area horizontally and vertically. Okay. So I can make this grid as small as possible. कितना भी छोटा बना सकते हो आप. एक कोई भी एक ले लो, इसका एरिया क्या होगा? Small change in the x-axis into small change in the y-axis. So you can add up this area from double integration. So इसका total area होगा dA. Okay. So then there are two types. Let's we have all this shape. So there can be two types like this. One is if you are taking this area from this particular point G2x upper limit to lower limit is curve G1x, and here you can have the coordinates from A to B. Then for this area you can find the integral from A to B and from G1x lower limit of this particular curve to G2x. पहले क्या करेंगे? Since integration in terms of x, we will first evaluate with respect to y and then with respect to x. या फिर आपका एरिया इस टाइप का है, something like this. These are two curves. This curve is G1y and this curve is G2y, and the area is from, let's say, these 2 points A to B. So we are getting the area from two curves G1y to G2y. इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम लोग we are doing this kind of integration, and here we are doing horizontal kind of integration. तो इसका एरिया अगर मुझे फाइंड करना है तो एरिया क्या आएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B, इंटीग्रेशन फ्रॉम G1y to G2y. Since integration with respect to y, we will first evaluate with respect to x, dx, dy. So either you can use this kind of integration or you can use this kind of integration to find the area of a curve. So let us come back to our PDF. तो यहाँ पे मैंने दो टाइप के कर्व्स ड्रॉ किए हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. So if you have the type 1 curve, टाइप 1 कर्व का एरिया होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B G1x to G2x 1 into dy dx. और अगर आपका सेकेंड टाइप होगा, इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करेंगे, इसीलिए G1y to G2y 1 times dx dy. Okay, so this is how you can perform the integration. अभी find the area of between the curve y is equal to 4 minus x square to y is equal to x square minus 2. तो ये एरिया आपको कैलकुलेट करने बोला है. ओके, तो ये एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हाउ आई विल डू? आई विल फर्स्ट फाइंड दिस कर्व. मतलब क्या करना है इसमें, एरिया में क्या करना है? एवरी टाइम यू हैव टू ड्रॉ द कर्व. ओके, तो मुझे कोई तो कर्व ऐसा मिलेगा, फर्स्ट कर्व, सेकेंड कर्व कुछ ऐसा मिलेगा. देन आई विल फाइंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं? जो फर्स्ट कर्व पे भी सेटिस्फाई करेगा. फर्स्ट कर्व कौन सा है? 4 minus x square.
एंड सेकेंड कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4. So to get the points of intersection, what do I will do? I will put these two are equal. क्योंकि ये कर्व यहाँ पे भी है, ये दोनों कर्व पे पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी दोनों तरफ के कर्व पे है. So I will put 4 minus x square is equal to x square minus 4. इसको इवेल्युएट करूंगा, सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, मैं 4 इस तरफ लेके जाता हूँ, x स्क्वायर इस तरफ लेके आता हूँ, तो मुझे मिलेगा 8 is equal to 2 times x square. I will get x square is equal to 4. X square is equal to 4 means x is equal to plus or minus 2. So x is equal to 2 and x is equal to minus 2 पे मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे. सो मेरा जो इक्वेशन होगा एरिया का वो क्या होगा, जो लोअर कर्व है x स्क्वायर माइनस 4 टू अपर कर्व दैट इज 4 माइनस x स्क्वायर एंड सेकेंड इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम -2 टू +2. तो -2 +2 कहाँ से आया, यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के मेरे जो पॉइंट्स है वो सॉल्व करने पे मुझे वो मिला. सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ सिस्टमैटिकली. ये जो डायग्राम है वो मैंने ऐसे अपने हाथों से बनाया, बट अगर आप सिस्टमैटिकली इसको ड्रॉ करोगे यू विल गेट दिस ग्राफ. 4 minus x square is a parabola. ओके, सो आपको एक बात बता देता हूं मैं, इसको कैसे मैंने फास्ट ड्रॉ करने के लिए. You will get this very useful. This is the graph of y is equal to x square. ये जो ग्राफ है पैराबोला y is equal to x square का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इट इज y is equal to minus x square. ऐसे शेप में आता है, मतलब रफली ऐसे होगा ग्राफ. अभी इसको मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4. एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब मुझे निगेटिव साइड पे शिफ्ट करना है. यही वाला ग्राफ को मैं 4 पॉइंट्स नीचे शिफ्ट करूंगा तो मुझे ग्राफ मिलेगा, ये वाला जो ग्राफ मिलेगा ये वाला ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4. सिमिलरली इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट करूंगा. ऊपर शिफ्ट करने के लिए मैं अलग कलर यूज करता हूँ. 4 पॉइंट से ऊपर शिफ्ट करना है मुझे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये कर्वर. तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 4 पॉइंट ऊपर शिफ्ट किया, सिंस निगेटिव था तो 4 पॉइंट नीचे शिफ्ट किया, सो दैट आई विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ. अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है, टेक 4-5 पॉइंट्स, ड्रॉ द ग्राफ्स. क्योंकि ये जो कर्व शेप होता है लाइन के लिए 2 पॉइंट्स आर इनफ, बट इफ यू वांट टू ड्रॉ द कर्व यू हैव टू टेक मोर देन 2-3. how you draw the graph. And to get this particular intersection points के लिए मैंने क्या बोला था, we will evaluate these two equation. x square minus 4 is equal to 4 minus x square. ये क्यों किया, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो दोनों पॉइंट्स है वो दोनों कर्व पे है. y is equal to 4 minus x square पे भी है and it is also belongs to the point y is equal to x square minus 4. So दोनों पॉइंट पे है इसलिए मैं ये कर सकता हूँ, राइट. ओके, ठीक है. Okay then, so we have got this point of +2 और -2. +2 अगर मैं इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 इज 0. तो 2,0 मिल गया. अगर मैं -2 पुट करता हूँ कोई भी इक्वेशन में तो मुझे मिलेगा y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. इसलिए what are the points of intersection, these are the points of intersection 2,0 एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है -2,0. तो आपको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन में हॉरिजॉन्टली करता हूँ तो लिमिट्स क्या होंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड x का लिमिट्स क्या होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में. यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू +-2. तो ये जो लाइन है y से पैरेलल वाला लाइन जो है, दिस लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू -2. एंड ये जो लाइन है यहाँ पे डॉटेड में दिख रही है आपको ग्रीन लाइन, इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू +2. बोथ आर द पैरेलल टू y एक्सिस.
Okay, so we have to get this kind of integration from -2 to 2, from x square minus 4 to 4 minus x square dx dy, or dy dx. So solve this integration. How to solve this integration? You are going to tell me next step क्या होगा. What is integration dy? इसको ब्रैकेट में लिखो पहले तो. -2 to 2 bracket x square minus 4 to 4 minus x square dy bracket complete and then dx. What is this bracket का integration value क्या होगा? y. So bracket का integration value होगा y. So limit outside as it is -2 to 2 y. What are the limits of y? What is the lower X limit? square minus 4 to 4 minus x square. X square minus 4 to 4 minus x square and then dx. Okay. So इसको solve करते हैं. Let me delete all this. Let gets down. So what you have substitute 4 minus x square minus 4. So 4 floor add हो जाएगा 8 minus x square will become minus 2x square. What is the integration of 8? 8x. Integration of 8 is 8x. And what is integration of x square? 2 is outside. X square का integration होगा x cube upon 3. इस पूरे ब्रैकेट को लिमिट्स दे दो -2 to 2. पहले 2 सब्स्टिट्यूट करो. You will get 16 minus 16 by 3, and then -2 substitute करो, you will get -16, and यहाँ पे minus will become plus 16 by 3. So it is overall 32 minus 32 by 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आंसर मिलता है देखो. 3 into 32 minus 32 upon 3. Calculate this value. You are allowed to use calculator, so please be seat. मतलब लेक्चर अटेंड करने के लिए कैलकुलेटर लेके ही बैठो तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा. व्हाट इज द आंसर? 3 into 32 is 96. 96 में से 32 गया तो आपको मिलेगा 64. 64 upon 3. So that is your answer. 64 by 3 is your answer. Now next, let us see one more example. Find the area of region between the curve y is equal to x square and x plus y is equal to 2. ये कैसे करेंगे? Let us draw the curve. You will tell me the points, which points to be plotted. Okay, I will draw over here. So this is my x-axis, and this is, suppose this horizontal line is your y-axis. तो यहाँ पे मैं draw नहीं कर रहा हूँ, directly y-axis दिखा. ठीक है, let us this is x and this is y. Let us plot a point 1, 2, 3, 4. Let's plot point over here 1, 2, 3, 4. यहाँ पे नेगेटिव साइड में प्लॉट करते हैं -1, -2, -3, -4. लेट मी फर्स्ट प्लॉट दिस कर्व. y is equal to x square प्लॉट करता हूँ येलो में. व्हाट इज x is equal to 0 पे y का वैल्यू क्या होगा? 0. x is 0, y is 0. x is equal to 1, y क्या होगा? 1. x is equal to 2, y क्या होगा? 4. Then x is equal to -1, y का वैल्यू क्या होगा? 1. +1.
x इज इक्वल टू -2, y का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज 4. सो लेट अस प्लॉट दिस पॉइंट. 0 0 इज अ ओरिजिन पॉइंट, तो ओरिजिन पे प्लॉट किया. देन 1, 1 इज अ पॉइंट, x पे 1, y पे 1, दिस पॉइंट इज 1. देन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4. सो x यहाँ पे 2 है, y इज यहाँ पे 4 है, ये वाला पॉइंट प्लॉट किया. यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1, तो ये वाला पॉइंट. देन x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 4, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट होगा. ठीक है, इट इज अ सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस. तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर्व ड्रॉ करता हूँ तो दिस मेरा कर्व सही नहीं है, बट ये दो पॉइंट से जाना चाहिए. लेट मी इरेज दिस पर्टिकुलर थिंग. और आपको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि ये पैराबोलिक शेप है, तो पैराबोला की तरह ही ये दिखना चाहिए. ओके, अंडरस्टूड द कर्व. मेरा एक कर्व ड्राइंग इतना परफेक्ट नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ये किसका इक्वेशन है, इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c. let us write in this form, y is equal to minus x plus 2. Okay, right? If I write in the straight line form, slope is equal to -1 and intercept is equal to 2. मतलब y axis को 2 पे क्रॉस कर रही है. So let us see how why I am saying it is y axis को 2 पे क्रॉस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होता है वो y एक्सिस पे होता है. तो इंटरसेप्ट इज 2 है, तो यहाँ पे 2 से क्रॉस करेगा. लेट अस टेक पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0. y का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई 2 होगा, तो 0,2. एंड इफ x इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू होगा 0. तो 2,0 एंड 0,2. सो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे ये वाला लाइन मिलेगा जिसका इक्वेशन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ओके, तो अंडरस्टूड दिस. और 1,1 दोनों लाइन पे भी है. यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 1,1 होगा, और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो है मुझे मिलेगा आई गेस -2,4. क्योंकि ये पॉइंट जो है -2,4 लाइन पे भी है, क्योंकि x प्लस वाई का इक्वेशन 2 आता है एंड इट इज इन द पैराबोला x इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो मुझे ये दो पॉइंट मिलने चाहिए, 1,1 -2,4. मतलब यहाँ पे लिमिट जो आएंगे वो कैसे आएंगे, x इज इक्वल टू -2 टू x इज इक्वल टू 1, एंड लोअर लिमिट आएगा, ये लोअर पैराबोला है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, लोअर लिमिट होगा. एंड अपर लिमिट होगा y इज इक्वल टू 2 माइनस x. ये लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू x स्क्वायर से लेके y इज इक्वल टू -2 माइनस x, एंड देन x गोज फ्रॉम -2 टू +1. दैट इज योर लिमिट. ओके, तो अंडरस्टूड ये कर्व कैसे प्लॉट करते हैं. तो लेट अस, Yes, sir. ये मेरा परफेक्ट फिगर पे डायग्राम है, मतलब एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पे जैसे प्लॉट किया अच्छे से, सॉफ्टवेयर जनरेटेड. तो अगेन द सेम, टू गेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, व्हाट वी पुट, एक में y इज इक्वल टू x स्क्वायर, सेकंड में y इज इक्वल टू 2 माइनस x. तो पुट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस x. तो आपने सॉल्व किया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यू गॉट दिस टू वैल्यूज, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 and x is equal to 1 from this also. और this is one way of doing it. अगर आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया है तो डायरेक्टली ये ग्रिड देखो, ये येलो वाला डॉटेड लाइंस दिख रहा है, ग्रिड का 1x1 ग्रिड है. So I can write this equation over here also. इतना बड़ा क्यों हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 -1 -2 -3.
यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा. If I want this particular point, since ग्राफ पेपर पे यूज कर रहा है, x coordinate is -2, y coordinate is 4. यहाँ पे since it is perfect ग्राफ पेपर पे x coordinate is 1, y coordinate is 1. So 1, 1 यहाँ पे मिला, -2, 4 यहाँ पे मिला. So x का coordinates क्या है? -2 से +1. And we are adding these lines from x square. Lower limit is y is equal to x square. Upper limit is y is equal to 2 minus x. कौन सा कर्व ऊपर है, कौन सा कर्व नीचे है, वो देखना पड़ेगा आपको. ये वाला कर्व नीचे है और ये वाला कर्व ऊपर है. सो यहाँ पे इक्वेशन होगा y is equal to x square. ये पूरा यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, ये वाला पॉइंट y is equal to x square. This curve is y is equal to x square and above curve is y is equal to 2 minus x. So limits are from x square to 2 minus x. X का limit is from -2 to +1 and then evaluate dy dx. Evaluate करो, कोई भी evaluate करो. इसके आगे का evaluate करके मुझे final answer बताओ. You get 5 minutes to solve this completely. ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करो. You can use calculator. Yes, anyone? Hello. Yes, sir. My net connection was gone. Just a minute. Why it is not restoring? तब तक आप ये ट्राई करो क्वेश्चन. Okay, let it be connected. Is my screen visible? No, sir. Okay. So anyone got the answer? Hello. Yes, sir. Doing, sir. Hmm.
Is my screen visible to you? Yes, sir. Yes. Okay, ठीक है. So let us solve it further. Fast में solve करते हैं फटाफट. इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे ये मिलेगा. आगे करते हैं. What is integration of 2x? What is integration of this minus x? Minus x square by 2. And what is this integration minus x square? X cube by 3. Let us solve from limits are from -2 to +1. पहले 1 substitute करो, so it is 2 minus 1 by 2 minus 1 by 3. और when you substitute this -2 substitute किया तो पहले मिलेगा -4 minus x square, -2 square is 4, so -4 by 2 minus -2 cube is -8 upon 3. तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस हो जाएगा. इसको सॉल्व करो. लेट अस सॉल्व दिस लाइक दिस. पहले 2 इंटीग्रल कोएफिशिएंट लेते हैं. यहाँ पे माइनस माइनस विल बिकम प्लस हो जाएगा, तो +4 लिख सकता हूँ. यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4/2 is 2, तो +2. अभी इंटीग्रल पार्ट्स लिखते हैं. तो इंटीग्रल पार्ट्स क्या है, -1/2. यहाँ पे क्या है, -1/3. और क्या बचा है, यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो -8/3. इन दोनों का बेस सेम है, 8/3 एंड -1/3 का, तो इनको ऐड कर सकते हैं. 2 + 4 + 8 -1/2. और इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 -8 इज 1 + 8, 9/3. तो इसका वैल्यू आएगा 3. 9/3 is 3, so it is 5 - 1/2. फाइनली 5 - 1/2 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 - 1 9/2. so answer of this integration is 9/2. are you getting this answer, 9/2? anyone? किसी को मिला 9/2 एज आंसर? Yes, sir. ओके गुड. तो अगर आपको इंटीग्रेशन आएगा ना, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा. ठीक है. तो आंसर इज 9/2. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने. रीड द क्वेश्चन. इवेल्युएट द इंटीग्रेशन x² - y² into dA, where area A is the area of triangle having vertices 0, 2, 2, 0 and 2, 0, 2, 2, and 2, 0. ये 3 vertices दिए हुए हैं. And what they have asked you to calculate the area. Okay, can you do it? Yes, sir. So let's do it, because मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को डायरेक्टली आएगा, क्योंकि ये थोड़ा, इसका इक्वेशन दिया नहीं है कुछ भी. कोऑर्डिनेट्स. तो लेट अस ड्रॉ दिस कोऑर्डिनेट्स. ये हटा देते हैं अभी. I will draw using this. अरे रे. ठीक है.
Okay, so now I am done. So this is your x-axis, this is your y-axis. Let this be your origin, 0. Let us draw 1 at 5 lines. After 5 lines I will draw 1. यहाँ पे 2 लिख देता हूँ. Similarly यहाँ पे 5 lines के बाद 1. Next 5 lines पे 2. Now tell me what are the vertices given? 0,2 मतलब ये वाला vertices दिया है 0,2. X axis पे 0, Y axis पे 2. Then 2,2 x square 2y पे 2, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका पॉइंट होगा 2,2. और थर्ड वाला पॉइंट जो है x एक्सिस पे 1 2 एंड y एक्सिस पे 0. तो आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो ये वाला ट्रायंगल बनेगा. Okay, so first you have drawn the triangle with these 3 vertices. ये जो तीनों वर्टाइसेस दिए उसका ट्रायंगल का ये दिया है. तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रहेगा? व्हाट इज लिमिट ओवर हियर? इसको कैसे करना है? हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है? अभी तक वर्टिकली हमने बहुत देखे, सो लेट अस हॉरिजॉन्टली डू इट. तो x इज इक्वल टू क्या इक्वेशन होगा यहाँ पे, और x इज इक्वल टू क्या इक्वेशन होगा यहाँ पे? कैन यू गेस? What is the equation of this line and this line? ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा और ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? Because I want to do it horizontally, I want this equation. So I want what is the equation of this line which I am drawing triangle, and what is the equation of this line? यहाँ पे तो सिंपल है, it is parallel to y axis. Can you see that this line is parallel to y axis? ये वाला जो लाइन है वो पैरेलल टू कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है. तो पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 2. तो इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 2. ओके, ये वाला लाइन पैरेलल टू कौन सा एक्सिस है? दिस लाइन पैरेलल टू, अरे बोलो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू y का कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? y को 2 में इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 2. So either you can go from this line y is equal to something to y is equal to 2 and then integrate from 0 to 2, or you can go from this point, that is x is equal to something to x is equal to 2. अभी इस इक्वेशन को फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे? What is your formula? लाइन का इक्वेशन क्या होता है? अरे बोलो, y is equal to mx plus c. अभी m क्या है? m स्लोप है. तो अगर m का वैल्यू निकालना है आपको, तो y इज इक्वल टू, y कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा है? इधर. दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो c का वैल्यू डायरेक्टली मिलेगा, c का वैल्यू डायरेक्टली मिलेगा. अभी सिर्फ m का वैल्यू मिल गया तो मुझे लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. करेक्ट? अगर मैंने m का वैल्यू फाइंड किया तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. अभी m का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स लेता हूँ. यहाँ पे इक्वेशन है 0,2 दिस वर्टाइसेस, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 2,0. तो आई कैन राइट दिस एज y2 minus y1 upon x2 minus x1. Correct? This gives me a slope into x plus 2. So let me erase this all. Let me write it very carefully. y is equal to, अभी मेरा ग्रिड लाइन का ये हो गया तो मैं ग्रिड लाइन हटा देता हूं. अभी अच्छे से दिखेगा आपको. y is equal to
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये सब ज्योमेट्री में आपने सीखा है, प्लस c का वैल्यू है 2। अभी y2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज ओवर हियर, ये पॉइंट पे वैल्यू है 2, तो इसको यहाँ पे लेते हैं, y इज इक्वल टू 2, और ये वाले पॉइंट पे y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, y का वैल्यू यहाँ पे वो 0 है, तो 2 माइनस 0 अपॉन ऊपर के पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है 0 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू है 2। तो अंडरस्टूड द इक्वेशन कैसे फॉर्म किया मैंने लाइन का, आई हैव पुट द इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और m क्या होता है, m होता है स्लोप, m इज कॉल्ड स्लोप। तो इंटरसेप्ट मिला, स्लोप मिला, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज 2 माइनस 0, 2 अपॉन माइनस 2 इज -1, राइट, 2 विल गेट कैंसिल, ये ऐसे आएगा, 2 अपॉन -2 आएगा, व्हाट इज 2 अपॉन -2, 2 विल गेट कैंसिल, -1 बचेगा, राइट। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और x इज इक्वल टू, अपने को x के फॉर्म में चाहिए, हॉरिजॉन्टल करना है, तो 2 माइनस y। So either you can solve in two ways. You can write x is equal to 2 minus y to 2, and then y का लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, यहाँ पे y is equal to 0 है, which is equation of x axis। ये लाइन कहाँ से कहाँ तक ऐड हो रहा है, y is equal to 0 से लेके y is equal to 2 तक ऐड हो रहा है। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 minus y to y dx dy। अभी उल्टा किया, क्योंकि इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ y है, तो आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे। व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अरे बोलो, इंटीग्रेशन dx, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, x square by 2 नहीं, x ओनली x, और लिमिट्स क्या होंगे x के, y अपर लिमिट, 2 minus y is lower limit, and then dy। Calculate this, this is equal to 0 to 2, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, y माइनस 2 माइनस y इंटू dy। अभी सॉल्व करो, 0 to 2, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट इज 2y माइनस 2 इंटू dy। अभी इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, 2 टाइम्स y square by 2 minus 2 times y, limit from 0 to 2, so 2 will get cancelled, calculate the limits, when you put 2, what will be the limits, सर आंसर 8 है। 2 square is 4 minus 2 into 2, that is 4, so 4 minus 4 is 0, minus, जब y में पुट करोगे 0 तो 0 ही होगा, why it is so coming like this, y to y, वहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा। नहीं रे, कहीं पे तो गड़बड़ किया ऐसा लग रहा है मुझे।
ओके, मैंने लिमिट्स रॉन्ग सब्स्टिट्यूट किया है, सॉरी, माय मिस्टेक इज हियर. x is equal to 2 minus y to x is equal to 2. So I have to put यहाँ पे limit is equal to 2. So let us erase all this. अरे मैं यहाँ पे execute कर रहा हूँ. यहाँ पे अपर लिमिट होगा 2 का, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 माइनस वाई से लेके x इज इक्वल टू 2 तक जा रहा है. तो अपर लिमिट इज 2. सो यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस दिस. तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला चला जाएगा, यहाँ पे होगा 2 माइनस 2 इज 0, माइनस माइनस प्लस y. तो यहाँ पे जो लिमिट बचेगा वो क्या होगा, अभी बराबर है. तो 2 माइनस 2 विल गेट कैंसल, 2 माइनस 2 हो जाएगा कैंसिल. वाई वाई क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 y इंटू डी वाई. तो y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाय 2. वाई स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2. तो फर्स्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, 4 बाई 2 इज 2, माइनस 0 वाला लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0. तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर ऑफ एरिया इज इक्वल टू 4. ओके, अभी ये एरिया निकाला है, बट अपने को जो कैलकुलेट आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ वो ये है, यू हैव टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन 0 to 2 2 माइनस वाई टू 2. इंटीग्रेशन कौन सा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू फर्स्ट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सेकेंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई. सो आपको इसका इवेल्युएशन करना है, ये मैंने एरिया निकाला है. ओके, I have to find the area of triangle and then I have to find this integration. So ये वाला इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर लिखना है. इन एग्जाम ये एरिया फाइंड नहीं किया तो भी चलेगा. ये वाला जो सम मैंने किया है, एरिया कैसे निकालते हैं, यू हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रेशन वैल्यू. इंटीग्रेशन का वैल्यू आपको निकालना है. ओके, तो एरिया 2 आएगा. ये सिर्फ मैंने इसके लिए दिया था क्योंकि यहाँ पे जो एरिया होता है वो मैं वर्टिकली भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये जो रीजन है, ये वाला जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स टू y इज इक्वल टू 2 एंड देन x फ्रॉम 0 to 2, ये लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू सेम आएगा आपका. और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या है, बेस का वैल्यू कितना है, लेंथ कितना है, ये लेंथ इज 2 फ्रॉम हियर टू हियर, लेंथ इज 2, हाइट इज ऑल्सो 2. तो आप अगर फॉर्मूला यूज करोगे, हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट, बेस इज 2 एंड हाइट इज 2, you will get area is equal to, right? So either you can use the formula or you can use the integration, you will get the same area. Okay, so let go back to our PDF. Let us take it further. Find the area of a circle x minus 1 square plus y square is equal to 1 using double integration. Tell me what is this circle? मैंने क्या बोला था, if you have x minus a square plus y minus b square is equal to 1, sorry, is equal to r square, then क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, x minus a square plus y minus b square is equal to r square. What does this represent? Anyone?
x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? What does this represent? X square plus y square is equal to r square. कोई भी अरे कितनी बार मैंने ये पूरा इंटीग्रेशन में मैंने यही बोला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज अ सर्कल एट सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस इज स्मॉल आर। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है तो क्या होगा? सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस इज ए, देन यू कैन ड्रॉ द सर्कल। अगर ये वाला पॉइंट है एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो सिर्फ जो सेंटर है वो शिफ्ट हो जाता है। तो सेंटर शिफ्ट का होगा ए कॉमा बी, ए कॉमा बी पे सेंटर शिफ्ट होगा, रेडियस इज आर एंड देन यू कैन ड्रॉ द सर्कल। So what is this equation? This equation represents a circle centered at a comma b and radius is r. जो यहाँ पे वैल्यू होगा आर स्क्वायर का, उससे आपको रेडियस मिलेगा। अभी इसको और इसको कंपेयर करो, x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेल मी द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ होगा इस सर्कल का? वाई स्क्वायर मतलब क्या है? y माइनस जीरो स्क्वायर, दिस एज इट इज। क्या होगा? ओरिजिन क्या होगा इसका एंड रेडियस क्या होगा? एनीवन? अरे मैंने यहाँ पे कितना बार समझे आपको, x माइनस ए स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर, इसमें ओरिजिन क्या है? ए कॉमा बी। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? -1, -0। -1 नहीं, क्योंकि माइनस ए है ना, -1। x माइनस ए का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, +1। तो a का वैल्यू इज 1, y का वैल्यू इज 0। सो 1,0 x एक्सिस पे पॉइंट होगा, 1,0 पे इसका सेंटर होगा। और रेडियस कितना है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू क्या होगा? किसका स्क्वायर 1 होता है? 1। ओके, सो आपका सेंटर मिल गया 1,0 और रेडियस मिल गया 1। तो उसके यहाँ पे सेंटर रख के अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा सर्कल मिलेगा, विच हैज रेडियस इज इक्वल टू 1 एंड सेंटर्ड एट 1,0। अभी ये सर्कल का आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये मैंने जो सॉल्व किया है इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में पीडीएफ पे सॉल्व किया है, मैं अभी इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सॉल्व करके बताता हूँ। ओके, दिस अबाउ लिमिट क्या होगा? लेट अस सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर is equal to 1. So 1 will get cancel out. So you will get the equation x square plus y square is equal to 2x. So y square is equal to 2x minus x square. Okay. So y का वैल्यू क्या होगा? प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x minus x square. ओके, तो ये y का लिमिट है। तो y का अबाव लिमिट आएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट रहेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड निगेटिव साइड पे निगेटिव स्क्वायर रूट रहेगा -2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका y का वैल्यू चेंज हो गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर।
and then x का limit is going from 0 to 2. Okay, so understood this limit. So let us solve in the, आपको समझा ना ये, how I converted this equation. I have simplified, एक bracket को expand किया और इसको simplify किया. I got these two limits, minus 2x minus x square to 2x minus x square and from 0 to 2. इसको मैं कार्टेशियन में करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये पोलर में सिंपल हो जाएगा. So let us take this 10th number page. Let us draw here again. यहाँ से नहीं ड्रॉ करता हूँ, ये वाला सेव नहीं रहेगा. ठीक है, 1,0 पे सेंटर और ये आपका सर्कल बन गया. ये सर्कल 0 से पास हो जाएगा. देन यहाँ पे लिमिट होगा y इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रूट होगा y इज इक्वल टू नेगेटिव रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर. सिंस यहाँ पे x पॉइंट 1 है, रेडियस 1 है, तो 1 माइनस 1 0 विल बी हियर. ये पॉइंट 0 होगा, 1 प्लस 1 2 विल बी पॉइंट ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस 1 है, यहाँ पे भी डिस्टेंस 1 है. ओके, अंडरस्टूड दिस प्रोसेस फॉर. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x का लिमिट, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर टू पॉजिटिव रूट ऑफ 2x minus x square dy dx. Tell me the limits again. 0 to 2. Since it is, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इंटीग्रेशन होगा y. Limits are minus root of 2x minus x square to plus root of 2x minus x square dx. Okay. पहले मुझे बताओ कि ये एरिया कैसे आएगा. इसका सर्कल का रेडियस कितना है, 1 है. व्हाट इज द एरिया फॉर्मूला फॉर सर्कल? एरिया इज पाई आर स्क्वायर. सो आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन का वैल्यू आपका आना चाहिए पाई, क्योंकि रेडियस इज 1, राइट. तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सिंस रेडियस इज 1, वी वांट टू गेट आंसर एज पाई. बट ये इससे इंटीग्रेशन से पाई मिलता है कि नहीं आपको चेक करना है. तो इट इज 0 to 2. ओके, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो. रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपर लिमिट माइनस ऑफ माइनस रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर. सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस dx. अभी क्या करना है इसको, 0 to 2 2 टाइम्स, ये 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन है, नहीं तो आप स्क्वायर रूट का 2 पकड़ोगे. इट इज 2 टाइम्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx. What is this integration? Can you write this integration? Can you solve this integration directly? ये सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे. इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे. 2x माइनस एक्स स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे. कंप्लीट स्क्वायर बनेगा क्या ये? Okay, put x is equal to 2 cos theta. I can put sin theta as well. So what will be the dx? dx क्या होगा, 2 sin theta. नहीं, ये नहीं करते हैं.
x is equal to 2 sin theta. What is dx? dx is equal to 2 cos theta d theta. तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे मंडे को. यू हैव टू सबमिट असाइनमेंट ऑन मंडे, सो संडे जो मिल रहा है उसको असाइनमेंट सॉल्व करने में लगाओ. नेक्स्ट वीक सिर्फ मेरे ही लेक्चर होंगे. ओके. On Monday you will have 2 lectures, but Tuesday onwards you will get one lecture of maths only, because all the faculties will be busy in the practical exam of TY. तो जो अभी नया सर्कुलर आया है TY का प्रैक्टिकल एग्जाम लेना है, तो all the remaining faculties will be busy. So you will have only on Monday you will have 2 lectures. Otherwise from Tuesday onwards you will have one lecture each. So just wait a minute, I will just download the attendance first. Okay, so you can go now, attend the next lecture. Thank you, sir.